Good morning, sir, and welcome everyone. Thank you for Echo. Probably some problem is there. Thank you all for joining us today for today's webinar. My name is Dr. Ruchi Sahu. I am assistant professor at Antarbharti Homoeopathic College. Today we are presenting case taking and repertory, a very important and crucial topic for our homeopaths by a very good orator, presenter, and well-renowned teacher, Dr. Navin Singh. Who is a professor at Calcutta Homoeopathic Medical College and Hospital, Government of West Bengal. He is a master in case taking and rubric findings, as well as a very good presenter. We are honored to have you with us today, sir. For the webinar, if anyone has any queries, we would like to have a question session. Now, without any further delay, we would like to start. We are going delay. Let's start. Enlightened by Dr. Navin Singh, sir, our presenter for today. Handing over to you, sir. Please start the time. First of all, I would like to thank the principal Antarbharti Homoeopathic Medical College Hospital, Dabha, Nagpur, for giving me an opportunity to present this webinar. And I'm especially thankful to my principals, ex-principal, Dr. Akhilesh Khan sir, and he is being really a very wonderful and dynamic person who is all there to help me out whenever anything happens. So really, apna ke pranam janiye sir. Let's start the webinar. Okay, start. Now, case taking and repertory. Case taking is one of the essential pillar of any system of medicine, whether it is irrespective of homeopathy हो, या allopathy हो, या आयुर्वेदी हो, या यूनानी हो, किसी भी सिस्टम में केस टेकिंग इज वेरी एसेंशियल. अगर आप कोई भी किताब की तरफ देखिए, हचिंसन खोल लीजिए या सर्जरी की क्लिनिकल दास की किताब खोलिए, पहला चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर यू आर गोइंग टू फाइंड इज केस टेकिंग और हिस्ट्री. सो डायरेक्टली होम्योपैथी में क्या इंपॉर्टेंस है इसमें ना जाके पहले केस टेकिंग के समझे कि व्हाट इज केस टेकिंग इन होम्योपैथी. Case taking, या case history, या case recording, if you go to any book, irrespective of any medical science, there you will find that it is a skillful process. Everywhere, not in only in homeopathy. In homeopathy, it is more artistic, more skillful, but it is a skillful process where a physician or a doctor tries to gather information by collecting data by conversation, by observation, by physically examining the patient, or even through laboratory diagnosis. In some cases, if it is a children or an unconscious patient, the bystanders also give the detailed history of the trouble. This is essentially case taking to all the schools of the medicine, not only to homeopathy, but all the schools of medicine, where the prime aim of your process is आपको इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करने हैं जिससे वो पेशेंट की प्रॉब्लम को समझा जा सके. नाउ नेक्स्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि समझना है कि पेशेंट वर्ड एक लैटिन वर्ड से आता है पेशेंस, जिसका मीन्स मतलब होता है वन हु इज सफरिंग और वन हु हैज फॉरबियरनेस. आई थिंक सम वॉइसेस आर कमिंग. If anybody has any question, please ask at any time. No problem. I am comfortable with any kind of question. But please mute yourself. If you want a question, you can ask. Okay, I'm continuing. Now, patient word, as a doctor, we understand in a very wrong way. Patient क्या है डॉक्टर के लिए? Every person who enters into a hospital, every person who enters into the clinic or chamber of the doctor becomes a patient for the doctor. Irrespective of that, कि उसको सही में कोई बीमारी है या नहीं है.
उसको सही में दवा लगेगी या नहीं लगेगी। इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, एज ए डॉक्टर हम लोग पेशेंट किसको समझते हैं? जो भी हमारे क्लिनिक में आया, जो भी हमारे आउटडोर में आया, जो भी हमारे पास पूछने के लिए आया, हर वो आदमी हमारे लिए पेशेंट बन जाए। ओके, द होल एंड सोल mission in overall medical practice is to relieve the suffering of disease. And this is very excellently summarized by Hahnemann in his book Organ of Medicine in Aphorism 1. Physicians high and only mission, the physician's high and only mission is to restore the sick to health, to cure as it is done. तो पेशेंट जब भी आए, पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि उसको रेस्टोर करना है, उसको उसकी सफरिंग को रिलीव करना। ये नहीं होना चाहिए कभी भी। एंड हैनीमैन गोस ऑन एक्सप्लेनिंग दैट यू शुड स्टार्ट टेलिंग हिम अबाउट हाउ डिजीज प्रोसेस हैज ऑकर्ड, व्हाट विल हैपन टू हिम, हाउ बैक्टीरिया और वायरस हैज डैमेज दिस और दैट। ये एटीट्यूड नहीं होना। आपका काम पेशेंट को डराना नहीं है, आपका काम जितना भी हो सके पेशेंट की सफरिंग को रिलीफ देना। इस चीज को दिमाग में रखना। अगर केस टेकिंग गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन है और जो प्रॉब्लम लेके आ रहा है वो पेशेंट है, तो पूरे मेडिकल फील्ड में केस टेकिंग का 5 प्राइमरी पर्पस होता है। जब भी आप केस टेकिंग करेंगे उसका 5 प्राइमरी पर्पस होता है। ओके, नंबर 1 पर्पस होता है डायग्नोसिस ऑफ द कंडीशन। Diagnosis doesn't mean that always the disease will be there. A patient may come to you with something, उसके आंख में गिर गया, उसके आंख में कुछ कंकड़ या बाल माने सैंड का कुछ ग्रेन्स इसके आंख में गिर गया। Now this patient does not need a medicine. If you properly diagnose this condition, this is a indisposition. इंडिस्पोजिशन अगर है तो उसका मैनेजमेंट अलग। अगर यही एक एक्यूट डिजीज होता तो उसका मैनेजमेंट अलग होता। यही अगर क्रॉनिक डिजीज होता तो उसका मैनेजमेंट अलग होता। आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज होता देन इट विल बी हैविंग ए डिफरेंट अप्रोच। और अगर इनएप्रोप्रिएटली नेम क्रॉनिक डिजीज होता तो उसके लिए डिफरेंट अप्रोच लिया जाए। सो जब भी केस टेकिंग करेंगे अपने पर्पस को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है। हर समय पेशेंट को लेबल नहीं करने की कोशिश करना है कि ये बीमार है। एक बहुत अच्छा इंस्टेंस हुआ था एक मेडिकल कॉलेज में, जहां पेडियाट्रिक्स के स्टूडेंट्स, पीजी स्टूडेंट्स के लिए एग्जामिनर ने एक केस रख दिया था और एवरीबडी वाज आस्क्ड टू डायग्नोज द केस। हर कोई ने डायग्नोज किया। उसके बाद एग्जामिनर जो था वो फ्यूरियस हो गया एंड ही वांटेड टू फेल एवरीबडी। उसने कहा कि सारे पीजीज को मैं फेल करूं। कारण क्या था? कारण था कि ही इन द एग्जामिनेशन ही गिव ए नॉर्मल चाइल्ड। उन्होंने एक नॉर्मल बच्चे को बैठा दिया एंड एवरी पीजी जो भी कर रहे थे वो बिजी हो गए कि बच्चे को कैसे भी एक बीमारी तो डालना है। सो यहाँ पे जो छोटी छोटी गलतियां होती है इसको अवॉइड करने की कोशिश करना। जब भी केस टेकिंग करें ये चीज समझने की जरूरत है कि हमें डायग्नोसिस ऑफ द कंडीशन करना है। ये जरूरी नहीं है कि डिजीज का ही डायग्नोसिस हो। वो इंडिस्पोजिशन भी हो सकता है, वो आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज भी हो सकता है, वो ट्रू नेचुरल क्रॉनिक डिजीज भी हो सकता है, या एक्यूट डिजीज उसमें फर्दर क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी हो सकता है। दिस इज अगेन वेरी। अगेन एक केस बताते हैं इसको समझने के लिए। एक बार हैनीमैन अपने घर पे अपने क्लिनिक पे बैठे हुए थे तो उनका एक फ्रेंड आता है उनको दिखाने के लिए। हैनीमैन asked him to detail the ailment and friends started complaining different problems. Okay. After patiently listening for an hour or so, Hahnemann said him that he will give no medicine to him. फ्रेंड बोला अच्छा तो फिर क्या करना है? बोला कि आप घर जाओ मैं आपसे आके मिलता हूँ। उनका फ्रेंड चला गया। हैनीमैन को ये समझ में आया
पेशेंट की हिस्ट्री सुनने के बाद, पेशेंट का केस लेने के बाद, इस फ्रेंड को कोई बीमारी नहीं है, ये कुछ ऐसा खा रहा है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं. These are not the symptoms of the natural disease, but these are the symptoms of the artificial disease. वो उसके घर गया and his friend was a painter. वो ड्राइंग बनाते समय वो ब्रश को इंक में डुबाता, अपने जीभ में लगाता थोड़ा सा डाइल्यूट करने के लिए, और उसके बाद उसको पेंट कर. हैनीमैन ने उसके जितने भी सर्कमस्टेंसेस को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद उसको लगा कि ये इंक ही है जो उसके प्रॉब्लम्स का ये है, बिकॉज वो थोड़ा थोड़ा करके इंक से पॉइजन हुआ. और फ्रॉम देयर हैनीमैन ने उसको रिमूव किया. पेशेंट, उसके फ्रेंड, ही गॉट वेल, एंड हैनीमैन ने फिर उस इंक को बाद में प्रूव किया, विच बिकेम ए वंडरफुल मेडिसिन. सो केस टेकिंग करने का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट को कैसे भी दवाई दे दो, कुछ भी रूब्रिक निकाल लो, कुछ भी मटेरियल से सिम्टम पकड़ लो, बिकॉज इवन ए हेल्दी पर्सन में भी आप चाहोगे तो कुछ भी रूब्रिक निकाल सकते हो. पेशेंट आया, नमस्कार किया, आपने कह दिया बेगिंग एंड ट्रीटिंग. पेशेंट आया, गुस्से से बात किया, आपने एंगर रूब्रिक उठा लिया. पहले ये समझना है कि क्या डिविएशन हुआ है नॉर्मल से. जो डिविएशन नहीं हुआ है नॉर्मल से, उसके पीछे भागना नहीं. जो नॉर्मल से डिविएशन हुआ है, जो हेल्दी से डिरेंज हुआ है, उस सिम्टम्स को देखो. उस सिम्टम के बेसिस में उस कंडीशन का डायग्नोस करना है, तब जाके वो पर्पस सॉल्व हो. एक और एग्जांपल बताते हैं. एक बार एक स्टूडेंट डॉक्टर केंट की उनके पास आई. उन्होंने बताया कि she has been suffering from one disease for a long time. She started detailing her symptom. Kent very patiently listen her complaint. इसके बाद जब उनका बोलना हो गया तो केंट ने उनसे कहा कि आपने कितनी बार लैकेसिस खाई? How many times you have taken लैकेसिस? And she said, I have been to many doctors. बहुतों को दिखाया मैंने, सबने ही मुझे लैकेसिस वेरी हाई पोटेंसी दी है, बार बार दी है. केंट ने कहा कि आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है. You just leave all the medicine, take some placebos. He has given some placebos, and within a few times, the lady got cured. She was a homeopathic student, and she got so much inspired by the treatment of Kent that she proposed Dr. Kent. She married to Dr. Kent, and she became the Kent's third wife, Dr. Clara Louise Kent, जो कि केंट की कंपेनियन थी लाइफ लॉन्ग. जब तक केंट थे उसके बाद भी केंट रेपर्टरी को कंटिन्यूअसली अपडेट करना. अगर आपके पास केंट रेपर्टरी होगी, उसकी प्रीफेस में 5th एडिशन में देखेंगे तो इट इज डेडिकेटेड टू 5th एडिशन ऑफ द केंट रेपर्टरी. का प्रीफेस में देखेंगे, इट हैज बीन डेडिकेटेड टू क्लारा लुइस केंट. सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, डायग्नोसिस ऑफ द कंडीशन. डिजीज डायग्नोसिस हर बात नहीं करना, डायग्नोसिस ऑफ द कंडीशन. अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं. जैसे ही आपने कंडीशन डायग्नोस किया तो आपको थेरेप्यूटिक अप्रोच पे जाना पड़ेगा. थेरेप्यूटिक अप्रोच कैसा होगा उस कंडीशन? अगर इंडिस्पोजिशन है तो रिमूवल ऑफ मैनिफेस्ट एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग कॉज. अगर एक बच्चा पैदा हुआ, उसका स्टूल नहीं पास हो रहा तो उसको ओपियम या प्लम्बम या एलुमिना या निक्टेंथस या पैराफिन नहीं देना. उसको पहले चेक करना है कि वेदर हिज एनस इज इम्परफोरेटेड और नॉट. अगर नहीं है तो वहां पे इंसिशन देने से हो जाएगा. तो ये चीज का दिमाग में, इस चीज का ख्याल रखना है कि आपका कंडीशन क्या है. कंडीशन अगर इंडिस्पोजिशन है तो इट रिक्वायर्स ओनली मैनेजमेंट. पेशेंट बेहोश हो जा रहा है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग फ्लावर्स या परफ्यूम्स जो है उसको रूम से हटा दे. इस चीज का ख्याल रखें. अगर एक्यूट डिजीज है तो आपको एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन ऐसे यूज करने हैं जो कि अदर क्लास ऑफ. एनी क्वेश्चन?
Okay, I'm continuing. अगर if you have any question, you can ask at any time. So, अगर acute disease है तो आपको एक ऐसे medicines use करने हैं individual acute disease के लिए जहाँ पे other class of well proved medicine है but they are non antisoric या non miasmatic, और इसके बाद आपको उस पेशेंट्स को माइस्मेटिक या एंटीसोरिक रेमेडीज देने हैं टू गेट कंप्लीट क्योर। अगर यही आर्टिफिशियल क्रॉनिक डिजीज है तो मस्ट बी रेमेडाइड बाय द पेशेंट हिमसेल्फ। अगर इनएप्रोप्रिएटली है, पेशेंट अल्कोहल ले रहा है, सिगरेट पी रहा है, खाना ज्यादा खा रहा है या खाना ठीक से नहीं खा रहा है, देन आपको डाइट एंड रेजिमेंट में चेंज करने की जरूरत है। और अगर ट्रू नेचुरल क्रॉनिक डिजीज है, देन डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉनिक माइजम आपको उसका ट्रीटमेंट, सो डायग्नोसिस ऑफ द कंडीशन के हिसाब से थेरेप्यूटिक अप्रोच आएगा। अगर यही केस एक सर्जरी है, यही केस अगर मल्टीपल गॉल स्टोन है तो थेरेप्यूटिक अप्रोच कैन बी सर्जरी। यही केस अगर फ्रैक्चर है, देन यू हैव टू गो फॉर रिडक्शन एंड प्लास्टरिंग। ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द डायग्नोसिस ऑफ कंडीशन, केस टेकिंग के बाद आपने क्या डायग्नोस किया उसके हिसाब से आपको थेरेप्यूटिक अप्रोच लेना होगा। थेरेप्यूटिक अप्रोच मतलब ओनली होम्योपैथिक मेडिसिन देना नहीं, इट कैन बी मैनेज, इट कैन बी इंडिस्पोजिशन का मैनेजमेंट, इट कैन बी सर्जिकल ट्रीटमेंट, इट कैन बी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, और इफ यू आर टेकिंग द हेल्प ऑफ एनी अदर सिस्टम ऑफ मेडिसिन आप वो भी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ द डायग्नोसिस। नेक्स्ट थिंग कम्स द मैनेजमेंट एंड प्रोग्नोसिस ऑफ द केस। टेस्टिंग करने के बाद आपको समझ में आएगा कि इस पेशेंट को क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, किस टेम्परेचर में रहना है, किस इन्वायरमेंट में रहना है। दिस ऑल थिंग विल हेल्प यू टू मेक द मैनेजमेंट एंड प्रोग्नोसिस ऑफ द केस। इसके बाद अगर केस अच्छा रहा, आपने ट्रीट किया, आपने उससे कुछ सीखा, आपको कुछ अच्छे सिम्टम्स मिले, तो आप उसको डॉक्यूमेंटेशन कर सकती हैं। अगर आपने केस रिकॉर्ड लिखा होगा तभी, तो आपको केस टेकिंग करने के समय ये भी ख्याल रखना है कि केस रिकॉर्ड सही से लिखा होना चाहिए। तो आप उसको पब्लिश कर सकती हैं, आप उसको एनालाइज कर सकती हैं, स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए आप यूज कर सकती हैं, आप उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ स्टडीज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और लास्ट इंपॉर्टेंट होता है अपनी सेफ्टी के लिए, पेशेंट कोई क्लेम ना करे, कुछ ना करे, इसके लिए केस टेकिंग का एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है लीगल प्रोसीजर्स। सो दिस आर ऑल फंडामेंटल पर्पस ऑफ केस टेकिंग इन ऑल फील्ड ऑफ मेडिसिन। ठीक है, खाली होम्योपैथी की बात नहीं कर रहे हैं, सारे फील्ड में कॉमन चीज है कि आपको डिजीज को, आपको कंडीशन को डायग्नोज करना है, आपको अपना थेरेप्यूटिक अप्रोच ठीक करना है, मैनेजमेंट एंड प्रोग्नोसिस करना है, स्टैटिस्टिकल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं, एंड लीगल प्रोसीजर्स के। सो ये फंडामेंटल पर्पस होता है केस टेकिंग। नेक्स्ट आते हैं होम्योपैथिक केस टेकिंग। होम्योपैथिक केस टेकिंग क्या है? 83 से शुरू होता है, बट 82 में हैनीमैन ने कुछ हिंट किए हैं कि व्हेनेवर अप्रोजोम 83 से शुरू होता है, बट 82 में हैनीमैन ने कुछ हिंट किए हैं कि जब भी आप केस टेकिंग करोगे तो ये चीज का ख्याल रखना कि इंडिविजुअलाइजेशन करना ही है। सिर्फ माइजोम के नाम पे मेडिसिन नहीं दे सकते कि ये सोरा है तो सल्फर दे दो, ये सिफिलिस है तो मरकरी दे दो, ऐसे नहीं दे सकते। आपको इंडिविजुअलाइजेशन करना है, और करने के बाद आपको समझना होगा कि एक्यूट में कितना लेना है सिम्टम और क्रॉनिक में कितना लेना है। सब में एक ही तरह का सिम्टम नहीं होगा। एक्यूट के लिए बहुत कुछ सेल्फ एविडेंट होता है, सब कुछ स्ट्राइकिंग होता है, तो आपके आंखों के सामने जल्दी आ जाता है। इसलिए जो बाकी जो डायरेक्शंस दिए गए 83 टू 90 ये पार्शियली एप्लीकेबल होते हैं एक्यूट डिजीज के लिए, फुल्ली एप्लीकेबल नहीं। केस टेकिंग जब भी पढ़ना हो, फर्स्ट हमेशा हैनीमैन से शुरू कर। हैनीमैन को बहुत बार लोगों ने पूछा कि पेशेंट कैसे देखना है, आप बताइए। ये इसके बारे में हैनीमैन डिस्कस कर रहे हैं मेट्री अमेरिका प्यूरा के प्रीएम्बल कि अच्छा पेशेंट कैसे देखना है ये बताइए। हैनीमैन का सिंपल कहना था, मुझे जितना भी आता है मैंने सब ऑर्गन में लिखा। आप अगर उसको ठीक से पढ़ेंगे तो वहां पे सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा। फिर पूछा गया कि अच्छा केस टेकिंग कैसे करना है, तो उन्होंने फिर एग्जाम्पल दिया कि केस टेकिंग आप जब भी करें, जैसे भी करें,
जितना भी डायरेक्शन है सब मैंने ऑर्गेनोन में दिया। तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, इसके बाद आप जो एनलार्ज करना चाहते हैं। इसको बोलने के बाद प्रियम्बल में हैनीमैन ने अपना 2 केस दिया है। पहला केस एक वॉशर वुमन लेडी का है। एक वॉशर वुमन लेडी हैनीमैन के पास आती। इस लेडी को प्रॉब्लम होता है कि उसके बदन में दर्द है, नौशिया है, उसको और थोड़े बहुत प्रॉब्लम है और वो अपना काम नहीं कर पा रही। एंड ही कम्स टू हैनीमैन। हैनीमैन दिखाते हैं कि कैसे मैंने केस लिया। देन ही शोज कि ये जो सिम्टम है ये किस किस मेडिसिन में कवर करते हैं। एंड ही गिव 1 dose ऑफ ब्राइनिया मदर टिंचर 1 ड्रॉप। मदर टिंचर है मतलब 20 ड्रॉप 30 ड्रॉप ऐसे नहीं देते थे, हम डेली नहीं देते थे, जस्ट 1 ड्रॉप ऑफ मदर टिंचर किया और बाकी क्लास एंड पेशेंट को बाद में आने के लिए कहा। उस समय हैनीमैन का एक स्टूडेंट वहां बैठा। Excuse me, please mute yourself. Jai Shankar Rai, please mute. Hello. Jai Shankar Rai, please mute yourself. Please mute, otherwise. Okay, so that हैनीमैन के जो स्टूडेंट थे, he got some confusion. बस eat drop mother tincture and you think you will cure this lady? हैनीमैन said, okay, if you want you can look it. आप जाके देख लो। जब पेशेंट आएगा, पेशेंट कभी नहीं आया उसके बाद। तो वो स्टूडेंट ने कहा कि डॉक्टर हैनीमैन पेशेंट तो आया नहीं, मतलब बिजी होगा शायद अपने काम में, इसलिए नहीं आया। Then his student took the address and went to that lady. लेडी ने कहा कि डॉक्टर को मेरा थैंक कहना, आफ्टर टेकिंग द फर्स्ट डोज विदिन 24 आवर्स मैं बेटर होने लगा। एंड फिर उसके बाद मैं वापस इसलिए नहीं गई क्योंकि लास्ट पूरा वीक मैंने कोई काम नहीं किया था, तो मैं कैसे उसको अपना घर चलाऊं। तो आई एम थैंकफुल टू डॉक्टर, मैं क्योर हो गई, लेकिन मेरे पास इतने पैसे भी नहीं और इतना टाइम भी नहीं है कि डॉक्टर को जाके थैंक यू। सो दिस इज हाउ हैनीमैन गिव एग्जांपल टू हिज स्टूडेंट कि कैसे केस टेकिंग करना है, क्या पढ़ना है, ऑर्गेनोन में कैसे देखना है, एंड देन कैसे अप्रोच करना है। सो ऑलवेज हैनीमैन सेज कि आपको जब भी केस आए आप उसको इंडिविजुअलाइज करिए। ये स्पेशली होम्योपैथी के लिए। Individualizing the case, examination of a case of the disease, which Hahnemann says in the Aphorism 83, is what we define as homeopathic case taking. Homeopathic case taking means you have to individualize the case. This is the essential. Now, with this, Hahnemann gives some qualities of the physician in case taking. Okay. We will discuss in short Hahnemann. Okay, rest क्या आगे देखना है, that I will tell you what are the important things you have to look for. Okay, then we will proceed towards how we will go to repertory. So qualities of physician in case taking. These are the qualities that a physician should have. Total in case taking, Hahnemann has given some qualities in Aphorism 83 and in Aphorism 98. In 83 he says freedom from prejudice. अपने बायसनेस से, अपने प्रेजुडिसेस से आपको फ्री रहना है। आपने एक पेशेंट को अच्छे से केस टेकिंग करके ब्राइनिया दिया, पेशेंट टाइफाइड का था, पेशेंट अच्छा हो गया। नेक्स्ट टाइम जैसे ही कोई टाइफाइड का पेशेंट आएगा, आपके मन में तुरंत ब्राइनिया आएगा। और आप अगर देते हो तो आप देखोगे कि फेलियर। क्यों फेलियर हुआ? बिकॉज यू in first instance you have taken your case, you have analyzed your case, evaluated your case, repertorized your case and given medicine. Second में क्या हुआ? You thought Brainia is a very good medicine. होम्योपैथी में ऐसा कोई भी good medicine नहीं होता। The indicated medicine is only the good medicine.
सो अपने प्रेजुडिस से बाहर निकलना. You have to avoid your prejudice that this medicine is good, this medicine is very good, like that. No, any medicine which is indicated is a good medicine. Which is not indicated, वो चाहे सल्फर हो, कैलकेरिया हो, ब्राइनिया हो, रस्टक्स हो, will never work. Okay, so ये मेडिसिन के लिए you cannot think medicine like this, that this medicine is a good medicine or this medicine, only the indicated medicine. And for this, you have to be free from prejudice. And what you have to do, in every case, you have to take the case. You have to note down what the patient feels, what the attendants are describing, and what you himself have observed. आपने क्या देखा पेशेंट में, अटेंडेंट ने क्या बताया और पेशेंट क्या बोला, ये सिम्टम्स का को लेके जब आप पिक्चर या टोटालिटी बना रहे हो, दैट इज द राइट वे इन होम. इसके अलावा जो भी तरीका है वो शॉर्टकट है या गलत की तरफ लेके जाएगा, आपको प्रेजुडिस की तरफ लेके जाएगा. नेक्स्ट कम साउंड सेंसेस. ओके, आपके सेंसेस को यू शुड बी वेरी एक्यूट ऑब्जर्वर, ध्यान से रखना है. जैसे आई विल लाइक टू हियर मेंशन वन इंपॉर्टेंट केस ऑफ डॉक्टर SR फाटक, डॉक्टर शंकर रघुनाथ फाटक. डॉक्टर शंकर रघुनाथ फाटक एक दिन एक पेशेंट को देखने गया, एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम वन mumps. The patient was suffering from mumps, and patient was lying on the side where the mumps is inflammation of the parotid gland, viral infection. There was a swelling of the parotid gland, and patient was lying on the side affected. He was accompanied by one great physician, Dr. P. Shankar. So they have taken the case, everything was noted down. Not much important they have found. Immediately उसी समय डॉक्टर पी शंकर ने कहा, सर पेशेंट को देखिए, जिस तरफ स्वेलिंग है पेशेंट उसी तरफ सोया हुआ, जिस तरफ स्वेलिंग है उसी तरफ पेशेंट सोया हुआ. दैट मीन्स lying on affected side amyloid. But the sound senses of फाटक के acute observation ने बताया नहीं, डॉक्टर शंकरन, patient is keeping his head on the pillow, the part of the swelling of the parotid gland is hanging down, and he is resting on his shoulder. Patient का सिर पिलो पे है, गाल झूल रहा है जहां स्वेलिंग है, और बाकी कंधे पे. ये lying on affected site नहीं है, ये hanging the suffering part amyloid. And this is a very, very strong modality for conium maculatum. And they have given conium maculatum and so this is how the sound senses will come into observation. There was again a very important physician, and he got one patient जो बार बार he failed to cure. और सबसे मजेदार बात थी, वो पेशेंट जिसको भी लेके आता था वो ठीक हो जा रहा था, लेकिन पेशेंट ठीक नहीं. एक दिन पेशेंट ने गुस्से से डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब मैं जिसको ला रहा हूँ वो ठीक हो जा रहा है, और मैं आपको साल भर से दिखा रहा हूँ मैं ठीक नहीं हो रहा. अगर आपने मुझे जल्दी ठीक नहीं किया तो मैं आपका चैम्बर जला दूंगा. अब क्या करे डॉक्टर, चैम्बर बंद करके भाग जाए, पुलिस में केस करे? नहीं. द डॉक्टर स्माइल्ड एंड गेव हिम a dose of Repertory. And the next time patient said, डॉक्टर साहब ये दवाई अभी तक क्यों नहीं दिया, आज तक आपने मुझे ये दवाई क्यों नहीं दिया, इतना आराम मिला, इतना आराम मिला. तो डॉक्टर साहब ने कहा, तुमने वो धमकी पहले क्यों नहीं दिया कि चैम्बर जला दूंगा. So this is one of the observation, very good observation of the doctor, कि पेशेंट की बात से घबराना नहीं है, पेशेंट डरा रहा है उसको डरना नहीं है, पेशेंट के सिम्टम को रूब्रिक में ठीक से कन्वर्ट करना आ जाएगा. पहला रूब्रिक थ्रेटनिंग, दूसरा रूब्रिक डिजायर टू सेट थिंग ऑन फायर,
हर कुछ में आग लगाने की इच्छा। ये दोनों रूब्रिक कीपर सेल्फ के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लाइक दिस आपको सोचना है पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट क्या बोल रहा है, ये ऑब्जर्वेशन पावर डेवलप करना है। और ये ऑब्जर्वेशन पावर एक दिन से नहीं आएगी, ये ऑब्जर्वेशन पावर आपको बैठे बैठे या किताब पढ़ते पढ़ते नहीं आएगी। ये ऑब्जर्वेशन पावर आएगी अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ रहे, उनके साथ रहे कि वो क्या देख रहे हैं, वो क्या सीख रहे हैं। इसके साथ पढ़ना तो पड़ेगा ही, बट चीजों को समझना ही पड़ेगा। मैं एक बार एक केस देख रहा था, एक पेशेंट एक बच्चे से बात कर रहा था, उसे पूछा रहा है आपका नाम क्या है, तो कहता था मेरा नाम क्या है, मेरा नाम नवीन है। ऐसे मैंने कहा कि आप कहाँ पढ़ते हो, मैं कहाँ पढ़ता हूँ, मैं ये स्कूल में पढ़ता हूँ। आप क्या आप कहाँ रहते हो, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं मानिकतला में रहता हूँ। If you fail to recognize the child repeats everything said to it, you will often miss the causticum and gingitum in this case. So this type of observation you have to develop in case study. Next comes the fidelity in tracing the picture of the disease. Fidelity means accuracy. Fidelity means accuracy. मुझे याद है अखिलेश खान सर बार बार पूछते थे Who are you? कोई कहता था मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा ये नाम है, like that. No, you are a physician. You are a homeopathic physician. And what is your language? What is your mother tongue? Somebody says Bengali, somebody says Hindi, कोई मराठी, कोई गुजराती, ये बोलेगा. No, Matria Medica is your language. So whatever patient is telling, they are telling the language of the Matria Medica. किसी भी भाषा में बोले, पेशेंट जो आपके पास आता है वो साइकिल में, बस में, गाड़ी में बैठ के नहीं आता है, वो आपके पास फेथ से आता है, विश्वास से आता है। ये विश्वास से आता है कि डॉक्टर क्योर करेगा। आपका मदर टंग जो भी हो, हिंदी, बंगाली, मराठी, गुजराती, बट वो एक्चुअल आपका मदर टंग नहीं है। एज ए फिजिशियन आपका मदर टंग है आपकी मेट्रिया मेडिका और आपकी रेपर्टरी। तो पेशेंट जो बोल रहा है उस सिम्टम को अपने लैंग्वेज में, माने अपनी मेट्रिया मेडिका में, अपने रेपर्टरी में देखना आना चाहिए कि पेशेंट क्या बोल रहा है और हम क्या सोचें। ओके, दिस इज कॉल्ड फिडिलिटी इन ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ द डिजीज। ओके, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं 98 में। स्पेशल सर्कमस्पेक्शन, टैक्ट, नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, patience in eminence degree. Okay, this all you need to understand. ये सब आपको हमेशा जरूरत पड़ेगी अच्छे केस टेकिंग करते समय और इवन ट्रीटमेंट के समय। हैनीमैन गिव हमेशा मेडिसिन देना ही जरूरी है। हैनीमैन गिव्स मेनी इंस्टेंसेस वेयर यू हैव टू क्योर द पेशेंट विदाउट गिविंग मेडिसिन। एप्रोजोम 16 के फुटनोट में वो बता रहे हैं कि जहां पे आपको बिना मेडिसिन दिए पेशेंट को ट्रीट करना है। मोरल रेमेडी जो कि एप्रोजोम 17 में है, वहां पे बता रहे हैं कैसे कनिंग डिसेप्शन से पेशेंट को ट्रीट करना है बिना मेडिसिन। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल बताया जा सकता है। मोस्ट ऑफ यू हैव वॉच्ड भूल भुलैया 1। भूल भुलैया 1 भूल भुलैया 1 एक फेमस पिक्चर थी अक्षय कुमार की एंड विद्या बालन। विद्या बालन बचपन से ही सफर कर रहे थे। उनकी नानी उनको कहानी सुना सुना के उनके अंदर में एक ऐसा कर दिया कि ही स्टार्टेड फीलिंग दैट ही इज अ डांसर एंड हिज हस्बैंड इज अ किंग हु हैज किल्ड हिज लवर। और ये पूरे सिचुएशन में अक्षय कुमार जो एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट का कैरेक्टर कर रहे थे, उन्होंने उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया। उन्होंने उसके सामने पूरा एक इन्वायरमेंट बनाया एंड एक पुतला को रखा, पुतला को उनके हाथ से कटवा दिया एंड नेक्स्ट मॉर्निंग शी वोक अप एज हेल्दी। दिस इज वन ऑफ द गुड एग्जांपल
that you have watched in television for moral reason, जहां पेशेंट अपने आप को सोच सोच के प्रेडिक्ट कर करके अपने आप को बीमार कर ले रहा है और डॉक्टर को एक कनिंग डिसेप्शन देके उसको ठीक करना होता है। यहाँ पे मेडिसिन नहीं लगी। ऐसे और भी बहुत इंस्टेंसेस हनीमन ने बताए हैं जहाँ पे बिना मेडिसिन दिए, जैसे मेंटल डिजीज डेवलपिंग फ्रॉम इमोशनल ऑरिजिन, जहाँ पे कांस्टेंट वरी, कांस्टेंट एंजाइटी से पेशेंट सफर कर रहा है, वहां पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज साइकोथेरेपी। जब साइकोथेरेपी हो जाए, पेशेंट का सिम्टम कुछ कम गया, then only you should start antipsychotic for security sake. Hahnemann says in aphorism 227 for security sake, 228 for security sake, that you have to start antipsychotic. लेकिन पहला ट्रीटमेंट है। सो ये जो क्वालिटीज है, स्पेशल सर्कमस्पेक्शन, टैक्ट, नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, पेशेंस इन एमिनेंस डिग्री, ये आपको बोथ केस टेकिंग एज वेल एज ट्रीटमेंट में you will have to utilize it. नेक्स्ट आते हैं हनीमन की केस टेकिंग को वेरी शॉर्ट में समझते हैं। आपने मोस्ट ऑफ यू हैव गॉन थ्रू इट। ओके, हनीमन 83 में क्वालिटीज उन्होंने बोल दिया। 84 में वो आते हैं कि पहला चीज हिस्ट्री कैसे लेना। जब पेशेंट आया आपके पास तो पेशेंट कुछ बोलने के लिए आया, उसको बोलने दो। Let him speak. When he is speaking, do not interrupt the patient. Listen carefully. See how patient is behaving and take a note down of all the symptoms. So, history taking part में आपको क्वेश्चन नहीं करना। Maximum you can give some remark. Oh, अच्छा, और कोई तकलीफ और कोई प्रॉब्लम, and just you have to listen it, just you have to note down it. I think some voice is coming. Approved by sir. Dr. Pohane, please. By sir. Dr. Pohane, please mute. Okay. Thank you. So 84 aphorism 84 of Organon deals with the history taking. जब पेशेंट हिस्ट्री ले रहा है तब क्वेश्चन नहीं पूछता है। पेशेंट ने बोला डॉक्टर साहब सिर दर्द है, then don't start bombarding questions. आपको पहले सुनना है, पेशेंसली सुनना है। कब तक सुनिए? जब तक पेशेंट अपना सब कुछ फिनिश ना करे। आपको खाली इतना बोलना है, अच्छा और क्या, any other problem, any more problem, like that. Don't ask anything. This is in aphorism 84, and no interruption to the patient, except in some cases where patients are wandering off. Except in those cases, you have to note down the history. 85 में बताते हैं कि कैसे लिखना है। You should leave some spaces between the each circumstances. पहला जो headache है, उसके बाद अगर pain in leg है तो उसके बीच में space रखिए, so that when more information about head is given, you can write. 86 में आके बोलते हैं how to complete the symptom. He says that after patient has finished or after narrator has finished, then you should revert back to each circumstances one by one. पहले उसको पढ़िए। अच्छा, आपने कहा था कि आपको headache होता है। Then you start questioning 4 points, 4 essential points. Whether it was before taking medicine, whether it was after taking medicine, or whether it was after leaving the medicine. ये पहला पॉइंट हुआ, क्वेश्चनिंग रिगार्डिंग मेडिसिन। दूसरा पॉइंट हुआ कि लोकेशन क्या है, व्हाट इज द एग्जैक्ट पार्ट। तीसरा हुआ सेंसेशन, एंड चौथा हुआ मोडालिटीज। सो ये 4 चीज आपको बेसिकली पूछना है कंप्लीट सिम्टम। इसलिए जब पूछा, बहुत लोग रेपर्टरी पढ़ाते समय बोलते हैं कि कंप्लीट सिम्टम आइडिया बोनिमोसन का था। नहीं, एप्रोजम 86 में ही हनीमन ने लोकेशन, सेंसेशन और मोडालिटी पूछने बोला है इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सिम्टम। सो बोनिमोसन का एक 4th कंपोनेंट ऐड किया गया था, दैट इज द कॉन्कॉमिटेंट। बट लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी हनीमन ने केस टेकिंग में भी पूछने बोला है, एंड ऑल्सो इन ड्रग प्रूविंग। व्हेन ए प्रूवर गिव्स ए सिम्टम,
in episode 136 says that you have to note down what is the exact character, at what time in the day or night there was. ये सब note कर. So location, sensation, modality is essential part of the complete symptom, which is given by Hahnemann himself. 87 में बताते हैं कि अगर आपने इस तरह का क्वेश्चन पूछा तो आप गलत पिक्चर डिजीज का बनाएंगे, और सिर्फ गलत पिक्चर नहीं बनेगा, इसकी वजह से पेशेंट का गलत ट्रीटमेंट हो. वो कैसा क्वेश्चन है? वो ज्यादातर लीडिंग क्वेश्चन. लीडिंग क्वेश्चन जब आप पूछेंगे पेशेंट से, लीडिंग क्वेश्चन के बारे में जब आप पेशेंट को लीड करेंगे क्वेश्चंस में, तो वो गलत पिक्चर ऑफ द डिजीज होगा और उसकी वजह से अनसुटेबल मेथड ऑफ ट्रीटमेंट होगा. ओके, नेक्स्ट आता है 88. 88 में हैनीमैन कह रहा है कि पेशेंट, उससे पहले कह रहा है कि हिस्ट्री पूछ लिया, आपने थोड़ी सी जगह रख ली, आपने सिम्टम्स के लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी और मेडिसिनल हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया, आपने कोई लीडिंग क्वेश्चन नहीं किया, तो केस टेकिंग लगभग हो गया. बट अगर आपको लगता है कि बहुत सारे ऑर्गन्स, माइंड एंड डिस्पोजिशंस, अदर स्पेशल सिम्टम्स आपको कुछ पूछना है, तो यू आर लिबर्टी, आप पूछ सकते हैं वेरियस पार्ट के बारे में. जैसे आपका स्टूल कैसा होता है, आपका यूरिन कैसा होता है, आपकी नींद कैसी है, आपकी प्यास कैसी है, ओके, आपको गुस्सा कैसा है, लाइक दैट आप पूछ सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को. आपका टेम्परामेंट कैसा है, आप चीजों को प्रैक्टिकल सोचते हैं या आइडियलिस्टिक सोचते हैं या माने रियलिस्टिक सेंस में सोचते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस यू कैन आस्क. 89 में आता है मोर प्रिसाइज एंड मोर स्पेशल क्वेश्चन. अभी आपने पूछा था 88 में कि स्टूल कैसा होता है, यूरिन कैसा होता है, नींद कैसी है, भूख कैसे लगती है. अब आप मोर स्पेशल क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें आप पूछेंगे कि अच्छा पसीना, पहले पूछा था 88 में कैसा होता है, आप पूछेंगे पसीने में कोई बदबू है कि नहीं, पसीना किस पार्ट में ज्यादा होता है, किस दिन के किस समय पसीना होता है, पसीना कैसा रहता है, ठंडा रहता है, गर्म रहता है. एक एक चीज के बारे में और मोर डिटेल. स्टूल आपने 88 में पूछा था स्टूल कैसा होता है, 89 में आप पूछेंगे कि स्टूल में म्यूकस होता है, स्टूल में खाली फीसस होता है, अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स होता है. यूरिन के बारे में पूछेंगे कि यूरिन किस समय ज्यादा होती है, सुबह में ज्यादा होती है, शाम को ज्यादा होती है, रात को ज्यादा होती है. इस तरह के क्वेश्चंस को आप पूछेंगे, पूछने के लिए लिबर्टी दिया गया है एप्रोसोम 89. एंड 88 और 89 के जो फुटनोट्स हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं, ऑल गिवन बाय हैनीमैन. यू कैन नॉट आंसर इन यस और नो. आप यस और नो में आंसर नहीं कर सकते, आपको डेफिनेटली बोलना हो. तो इनको जरूर पढ़िएगा. ऐसा मत सोचिएगा कि ये बहुत लंबे हैं, दिस आर वेरी लॉन्ग फुटनोट्स, you should explore them. See how Hahnemann has framed his question, and you cannot answer them as yes or no. You have to answer them in the proper way. After all this, he comes to aphorism 90, where he describes that after everything you have noted down, now you note down what you himself have observed in the patient. What is the color of his hair? What is the color of his eyes? कैसे बैठा, कितना जोर लगा के उठा, कैसा उसका टंग है, पल्स कैसी है, ब्लड प्रेशर कैसा है, कुछ लैब इन्वेस्टिगेशंस देना है कि नहीं देना है, ये सब ऑल दिस इंफॉर्मेशन आप 90 से रिलेट कर सकते. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ हैनीमैन्स केस टेकिंग. 83 से शुरू हो रहा है क्वालिटीज, देन हाउ हिस्ट्री टेकिंग, देन कैसे लिखना है, देन कंप्लीट करना है, देन लीडिंग क्वेश्चन नहीं करना है, आपको दूसरे पार्ट्स के बारे में क्वेश्चन पूछना है, मोर स्पेशल और मोर प्रिसाइज क्वेश्चनिंग करना है, और आपको अपना ऑब्जर्वेशंस दे. दिस ऑल मेक हैनीमैन केस टेकिंग. इसके बाद ही डिस्कस वेरियस स्पेशल सिचुएशन. जब एक क्रॉनिक पेशेंट आपके पास मेडिसिन खा के आता है, तो आप केस टेकिंग कैसे करेंगे, 91 में बता रहे हैं. एक्यूट पेशेंट आ रहा है मेडिसिन खा के, तो क्या करना है. ये सारे सिचुएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस प्रैक्टिकली हैपेंस इन लाइफ. एक पेशेंट आपके पास आएगा, डॉक्टर साहब मुझे ब्लड प्रेशर है या मुझे डायबिटीज है. नाउ आई हैव टेकिंग मेडिसिन फॉर द लास्ट 10 years. आई वांट टू शिफ्ट इन होम्योपैथी. सुना है कि होम्योपैथी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए मैं
आपको दिखाना चाहता हूँ। सो इस केस में यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली सिम्टम ही कुछ नहीं मिलेंगे। अब क्या करना है, पेशेंट को क्या देना है, तो कैसे इस केसेस का केस टेकिंग करना है, ये जो सिचुएशंस है ये 91 में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ यू नो, आई एम नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल क्योंकि फिर केस टेकिंग में ही ज्यादा टाइम चल जाएगा, बट ये चीजों को ऑलवेज दिमाग में डालिए कि these are the things very clearly given in organ that you have to. नेक्स्ट आता है ऑब्वियस कॉज आता है, जहां पे पेशेंट कुछ प्रॉब्लम लेके आया एंड यू हैव टू आइदर, पेशेंट आपको स्पॉन्टेनियसली बोल देगा और यू हैव टू इंक्वायर पेशेंट वेरी सीक्रेटली। एंड हियर हैनीमैन हैज गिवन 12 स्पेशल कंडीशन जो पेशेंट आपको सीक्रेटली ही बताएगा। वो उसके सेक्सुअल हिस्ट्री हो रिलेटेड सिम्टम हो गया, वो उसका अब्यूसेस हो गया, अल्कोहल और ड्रग्स वगैरह का अब्यूसेस हो गया। सो ऐसे 12 पॉइंट्स हैं which Hahnemann has given in this footnote of episode 93, okay, where you have to ask this patient very privately. इसको प्राइवेटली पूछा जाए। पेरेंट्स बैठे हैं पेशेंट के, उसके सामने आप पूछ रहे हो सिगरेट पीता है, कोई भी पेशेंट बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं पीता। आपको देख के लग रहा है कि उसका होंठ एकदम काला हो चुका है सिगरेट पी, बट पेशेंट बोल देगा नहीं पीता। अल्कोहल पीते हो, नहीं नहीं डॉक्टर साहब कभी कभार रेयरली। बट इफ यू क्वेश्चन केयरफुली कि अच्छा डेली पीते हैं, हाँ हाँ डेली थोड़ा सा पीते हैं, अच्छा कितना पैक पीते हैं, 4-5 पैक ही पीते हैं डेली, देन यू केम टू नो ही इज ए क्रॉनिक अल्कोहल। सो पेशेंट को डील करते समय जो क्वेश्चंस करा जाता है वो क्वेश्चंस यू शुड फ्रेम केयरफुली। फर्स्ट क्वेश्चन में यूजुअली पेशेंट विल डिनाई, यूजुअली पेशेंट विल ट्राई टू डाइल्यूट, नहीं डॉक्टर साहब आई डोंट ड्रिंक सो मच सिगरेट, okay, sometimes. Now if you ask carefully how many packets a day, how many cigarettes per day, then you will came to realize he is taking 2 to 3 packs of cigarette daily. Okay, these are the things you have to question carefully in privately to the patient. इसके बाद आता है नेक्स्ट एप्रोजम फॉर एसेसरी सर्कमस्टेंसेस। यहाँ पे दो चीज का ख्याल रखना है। एसेसरी सर्कमस्टेंसेस यू ऑल नो, पेशेंट का ascertainable physical constitution, moral and intellectual character, social and domestic relationship, ये सारे चीज whether they tend to modify the disease or they help to produce the disease, वो disease के modifying factor हैं या वो disease को produce करने में direct help कर, और जहां हो सके इनको कैसे minimize किया जाए, इनको कैसे remove किया जाए, that you have to again think of. तो एसेसरी सर्कमस्टेंसेस वाले फुटनोट पे ये एप्रोजोम के नीचे जो फुटनोट है उसमें अगेन ही सेज अगर एक फीमेल का केस टेकिंग करूं तो प्रेगनेंसी, लैक्टेशनल और सेक्सुअल हिस्ट्री, मेंसेस हिस्ट्री, ल्यूकोरिया हिस्ट्री, जितने भी गायनेकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेटिकल इश्यूज हैं इन सब की हिस्ट्री आपको प्रॉपर लेनी होगी। ओके, दिस ही स्ट्रेसेस इन एसेसरी सर्कमस्टेंसेस। इसके अलावा भी एक सिचुएशन आता है जहां पेशेंट अपने सिम्टम को बताना भूल जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि उसको वो डेली पार्ट समझता है। सच सिम्टम को हैनीमैन ने कहा है कि दिस आर दी लेजर एसेसरी सिम्टम्स। इनकी बहुत वैल्यू। पेशेंट हर दिन सुबह उठते साथ ही स्टूल के लिए जाता है, एकदम रनिंग उठते साथ ही उसको जाना पड़ता है। पेशेंट को लगता है 10 साल से सफर कर रही है, ये तो नॉर्मल है। सो ये सिम्टम्स पेशेंट नहीं बताएगा, ये आपको केयरफुली पेशेंट से बाहर करना, ये सिम्टम आपको केयरफुली पेशेंट से बाहर करना। These are called लेजर एसेसरी सिम्टम्स और दे आर वेरी कैरेक्टरिस्टिक। कभी कभी तो ये मेडिसिन की सिलेक्शन पे पूरा हेल्प करते हैं। दिस लेजर एक्सेसरी सिम्टम्स दे हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ द मेडिसिन। इसके बाद एक कैटेगरी ऑफ पेशेंट आता है जो अपने सिम्टम्स एग्जैगरेट करते हैं। ये 3 तरह के पेशेंट होते हैं, हाइपोकॉन्ड्रियाक होते हैं, इम्पेशेंट होते हैं और अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बोलने वाले होते हैं। ये अपने सिम्टम्स को जरूरत से ज्यादा क्यों बताते हैं? इनको लगता है कि डॉक्टर साहब को अच्छे से बताएं, जोर से बताएं,
तो डॉक्टर साहब अच्छी दवाई देंगे, लाइक दैट। इनकी ट्रीटमेंट इसी फुटनोट में 96 के फुटनोट में ही हैनीमैन ने दिया है। नेक्स्ट है ऐसा कैटेगरी ऑफ पेशेंट जो अपने सिम्टम नहीं बताते, ये इंडोलेंस है, ये वीकनेस ऑफ माइंड कैटेगरी ऑफ पेशेंट है, ये फॉल्स मॉडेस्टी पेशेंट हो सकते हैं, ऐसे टाइप के ना। इसके लिए बहुत ज्यादा डिटेल हैनीमैन ने नहीं दिया है, बट इफ यू रीड केंट के लेक्चर्स, स्पेशली एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट, देयर केंट हैज टोल्ड हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ पेशेंट। इस तरह के पेशेंट से कैसे डील करना है, जो जिनको याद ही नहीं रहता अपना सिम्टम, जो भूल जा रहे हैं, जो मॉडेस्टी की वजह से बता नहीं पा रहे, शर्मा रहे हैं, शाई है, बता नहीं पा रहे, ऐसे पेशेंट को केंट ने कहा है इनको तभी ट्रीट करिएगा जब ये अपने सिम्टम्स लिख के लेके आए। आप पेशेंट को बोलिएगा अगर आपको याद नहीं रहता, अगर आपको शर्म आती है, तो आप अपने सिम्टम्स लिख के लेके आए। सो इंडोलेंट पेशेंट में ये केंट का एक छोटा सा एडिशन है। इंडोलेंट पेशेंट पे ये चीज को ख्याल रखिएगा कि आप पेशेंट को बोल सकते हैं कि आप अपने सिम्टम्स लिख के लेके आए। पेशेंट को डॉक्टर के सामने या क्लिनिक में स्टूडेंट्स वगैरह भी रहते हैं, तो उनके सामने जब बोलने में शर्म आ रही है, तो ऐसे सिचुएशन में पेशेंट अगर लिख के लाएगा तो डॉक्टर के अंडरस्टैंडिंग के लिए वो बहुत अच्छा होगा। इसके बाद एक्यूट डिजीज की केस टेकिंग, कलेक्टिव डिजीज। कलेक्टिव डिजीज क्या होता है? कलेक्टिव डिजीज जहां ऐसी बीमारी जहां एक से ज्यादा पर्सन सफर कर रहे हैं एक ही कॉज की वजह से, उसको कलेक्टिव डिजीज कहा जाता है। कलेक्टिव डिजीज दो तरह के होते हैं, एक स्पोराडिक और एक एपिडेमिक। ओके, ये स्पोराडिक डिजीज और एपिडेमिक डिजीज को दोनों को मिला के कलेक्टिव डिजीज कहा जाता है। इसके बाद आता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्रॉनिक मायोसोम। आपको क्रॉनिक मायोसोम की इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी है और रिकॉर्ड करनी है। ये सब सिचुएशन अगेन बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस करने लायक है, तो आई एम जस्ट पासिंग इट नाउ। आप पढ़िए, अगर एनी क्वेश्चन एनी डाउट रहेगा तो आई विल आंसर इन क्वेश्चन आंसर सेशन। तो दिस इज हाउ हैनीमन्स केस टेकिंग खत्म होती है। जब भी केस टेकिंग पढ़ लिया आपने हैनीमन का, इसके बाद क्या क्या किताब केस टेकिंग की पढ़ना है, ये ऑफ कोर्स एवरीवन प्लीज नोट डाउन, स्पेशली स्टूडेंट्स मस्ट नोट डाउन क्या पढ़ना है। आपने जैसे ही हैनीमन की केस टेकिंग पढ़ी, यू गो टू जेटी केंट्स फिलॉसफी ऑफ होम्योपैथी, वहां पे 4 चैप्टर हैं, एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट, और एक और चैप्टर ऐड करिएगा रिकॉर्ड। ये 5 चैप्टर आपको पढ़ने ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, यहाँ पे केंट कैसे स्ट्रेस कर रहे हैं कि जब भी कोई पेशेंट देखो तो उसमें पैटर्न ऑफ द डिजीज देखो। इसको लेके मैं एक केस अक्सर बताता हूँ, उसको दोबारा से बताता हूँ कि एक बार डॉक्टर वेसलॉफ एक पेशेंट देख रहे, पेशेंट वाज मेल पेशेंट था एंड उनके कोई बच्चे नहीं, तो स्टेराइल था, मतलब वेसलॉफ वाज ट्रीटिंग फॉर मोर देन ए ईयर एंड पेशेंट का कोई रिलीफ नहीं। अब जब रिलीफ नहीं हुआ तो पेशेंट थोड़ा सा डिसहार्टेंड हुआ, वो बोला कि मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। तो वेसलॉफ ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो कहा कि ऐसे ही यहाँ बोस्टन की तरफ या ऐसे ही जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा वहां जा रहे, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वहां मेरे टीचर रहते हैं डॉक्टर एडोल्फ लिपी, एक बार जरूर उनको दिखा के आइएगा। उन्होंने एक चिट्ठी लिखा वेसलॉफ ने एंड डॉक्टर एडोल्फ लिपी को लिखा कि ये पेशेंट को मैं ट्रीट कर रहा हूँ बट कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप प्लीज इस पेशेंट को देखिए। वो पेशेंट गया, लिपि को दिखाया, वहां से जब आया तो उन्होंने लेटर वेसलॉफ के नाम पे दिया कि ये आपके सर लिपि सर ने भेजा। तो वेसलॉफ ने जब उसको पढ़ा तो देखा उसमें लिखा था कि तुम्हारा जो पेशेंट है उसको बचपन से ही बार बार सर्दी होता था, रिकरेंट, और हमेशा एक नाक बंद होता था, फिर वो ठीक हो जाएगा तो दूसरा नाक बंद होता था, फिर वो ठीक हो जाएगा तो फिर पहला नाक बंद होता था, यूजुअली लेफ्ट टू राइट जाता था, लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट। फिर इस पेशेंट को डिप्थीरिया हुआ, वो मेम्ब्रेन भी लेफ्ट से शुरू हुआ, राइट की तरफ गया, फिर राइट से फिर लेफ्ट की तरफ आया।
तो इस पेशेंट में कॉन्स्टेंटली एक डिजीज का पैटर्न है कि आप इसका सिम्टम लेफ्ट से शुरू होता है, राइट की तरफ जाता है और फिर लेफ्ट की तरफ आता है। तो इसके बेसिस में मैंने इसे लैक्टैन 200 दिया है। हो सकता है उसको बाद में फ्यूचर में कभी पल्सेटिला लगे, क्योंकि पल्सेटिला में भी चेंजिंग साइट्स है। वेसलॉफ का कहना था लैक्टैन की दोबारा दूसरी डोज तो लगी नहीं, पल्सेटिला तो दूर की बात है। एंड विद इन 2 ईयर उस पेशेंट के विद इन 3 ईयर उस पेशेंट के 2 बच्चे हुए। सबसे मजेदार बात थी कि लैक्टैन में इस तरह के सेक्सुअल वीकनेस वाले सिम्टम या स्टेरिलिटी वाले सिम्टम है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। तो कैसे लिपि ने प्रिस्क्राइब किया? लिपि ने प्रिस्क्राइब किया ऑन द बेसिस ऑफ एनामनेसिस ऑफ द केस की हिस्ट्री के बेसिस में, और पैटर्न ऑफ द डिजीज को देखा गया कि लेफ्ट से राइट शिफ्ट हो रहा है, फिर लेफ्ट आ रहा है, इसके बेसिस में। इस चीज को केंट ने अपने केस टेकिंग में बहुत गुरुत्व दिया है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। केंट बता रहे हैं कि कभी ट्रीटमेंट करते हुए आप अपने केस में खो जाएंगे। आपने एक पेशेंट को थूजा दिया, फिर उसके बाद बहुत सारी मेडिसिन दी, शुरू में पेशेंट अच्छा था, फिर लगभग 6 महीने 7 महीने ट्रीटमेंट करने के बाद देख रहे हैं पेशेंट खराब होता जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि दोबारा से खोजिए कहाँ पे वो थ्रेड लॉस्ट हुआ था, कहाँ लास्ट किस प्रिस्क्रिप्शन के बाद लास्ट पेशेंट अच्छा था, उस प्रिस्क्रिप्शन को खोजिए, उस पॉइंट से दोबारा से शुरू करिए। उसके बाद आपने जितने प्रिस्क्रिप्शन किए हैं वो गलत हुए हैं, इसलिए पेशेंट खराब हो गया। तो ऐसे सिचुएशंस, ऐसे प्रैक्टिकल सजेशंस को काफी ध्यान से देखना होता है केस टेकिंग, ओके, जिसके लिए मास्टर है ही, और उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। कैरोल डनहम की एक केस टेकिंग पे किताब आती है, इसको ऑफ कोर्स पढ़ना है, स्पेशली एनामनेसिस पार्ट, जहां पे उन्होंने एक मार्वलस क्योर किया एक केस ऑफ डेफनेस का। एक पेशेंट उनका आया था डेफनेस लेके, एंड कैरोल डनहम में हिस्ट्री में निकाला इस पेशेंट को कुछ दिन पहले इसके हेड पे एक इरप्शन आया था जो क्रस्टी था, जिसके अंदर पस भरा हुआ था ऐसे, एंड इसके बाद ही ट्रीटेड विथ ऑइंटमेंट्स, एंड देन वो सिम्टम डिसअपियर हो गया, एंड डिसअपियर होने के बाद ही ग्रेजुअली डेवलप डेफनेस ऑफ ईयर। इस बेसिस पे डॉक्टर डानहम ने उसे मेजेरियम दिया, और मेजेरियम देने के बाद उसका डेफनेस तो क्योर ही हुआ, और उसका इरप्शंस वगैरह भी आके वापस फिर से चला गया। डनहम की किसी भी किताब में देखेंगे इस केस का जरूर जिक्र है। आप डनहम की साइंस ऑफ थेरेपेटिक्स पढ़िए, आप डनहम की मेट्रेमेडिका पढ़िए, क्योर बाय ऑफ डिफनेस, ये एक बहुत अच्छा प्रिस्क्रिप्शन था ऑन द बेसिस ऑफ एनामनेसिस। आपको हिस्ट्री लेना, आपको सिम्टम्स लेना, ये बहुत अच्छा डनहम ने सिखाया। डनहम इज वेरी क्लियर, बहुत लूसिड ऑथर है, सबसे इजी लिखते हैं, बिना कोई कॉम्प्लिकेशन के लिखते हैं, ओके, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड डनहम की राइटिंग्स। और एक बहुत स्ट्रेस किया है उन्होंने कि केस टेकिंग में जहां गलती होती है अल्टरनेटिंग सिम्टम नहीं समझ में आता। तो एक ब्रॉडर पिक्चर लीजिएगा कि पेशेंट को ठंडी में क्या प्रॉब्लम होती है, गर्मी में क्या प्रॉब्लम होती है, इसमें आपको समझ में आएगा कि अल्टरनेटिंग सिम्टम क्या होता है। नहीं तो ये अगर नहीं समझ पाएंगे तो आप वो पोडोफाइलम या कैलीबाई या एब्रोटिनम के सिम्टम्स को नहीं समझ पाएंगे, वेयर पेशेंट को समर में डायरिया होता है और विंटर में उसको रूमेटिक ट्रबल्स होता है या साइटिका होता है, ऐसे सिम्टम्स, ओके। सो पेशेंट के हर सीजन में क्या तकलीफ होती है इसको ध्यान से देखना है। डनहम की राइटिंग में बहुत अच्छा बताया। नेक्स्ट, स्टुअर्ट लॉस के ने एग्जामिनेशन ऑफ पेशेंट में भी अपने केस टेकिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया। बोगर अगेन मास्टरपीस है, आई एम नॉट गोइंग फर्दर मोर डिटेल। पी बेंडर एक वेरी यूजफुल बुक है केस टेकिंग के। नैश, ईबी नैश की एक छोटी सी बुक आती है केस टेकिंग पे। फोबिस्टर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, स्पेशली जहां पे पास्ट हिस्ट्री आपको हेल्प करेगी प्रिस्क्रिप्शन करने। पास्ट हिस्ट्री
केस इंप्रूव नहीं हो रहा है, रिपीट मिजल्स जो एक बार होना था 2-3 बार हो चुका है पेशेंट को और पेशेंट इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो a dose of morbillium will help you to unlock that case. So फोबिस्टर की कौन सी किताब, द सिग्निफिकेंस ऑफ पास्ट हिस्ट्री बाय डीएम फोबिस्टर, इस बुक को जरूर पढ़ना है, मस्ट। और स्टन की एक आर्टिकल है केस टेकिंग पे, अगर नहीं मिलती है तो आप मुझे मेल कर दीजिए, आई विल सेंड। ओके, सो दिस आर द एसेंशियल थिंग्स ऑन केस टेकिंग। Sir, should I continue some more time or should I take question? I think we are around How many times it will require for your completion? it will go, sir, more than 1 hour. No, because of there will be some classes. That's why Scheduled classes there. that's why I told if whether Now you please okay, let me summarize little bit. and another day we'll invite you. Another day I will talk with let me principal. summarize the thing. And so you declare sine die. Okay. Now, after case taking, your work is not over. After case taking, the most difficult task is over. But next, very important thing is analyzing and evaluating the symptom. अपने केस को एनालाइज करना है, अपने केस को इवेल्युएट करना है। 1 घंटा दिया केस टेकिंग करने के लिए, एटलीस्ट 5 मिनट से 10 मिनट दीजिए केस को एनालाइज करने के लिए, इवेल्युएट करने के लिए कि किस सिम्टम पे प्रिस्क्रिप्शन करना है और किस सिम्टम पे प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना है। और यहीं पे बड़ा होम्योपैथ और छोटा होम्योपैथ में फर्क आ जाता है। अच्छा होम्योपैथ, गुड क्वालिटी केस टेकिंग लगभग सब सीख पाते हैं, बट इवेल्युएशन सब नहीं सीख पाते। ये आपको अच्छे से किसी के अंडर बैठ के सीखना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कोट है एमएल टाइलर और सर जॉन वेयर का, सक्सेस इन रेपर्टराइजिंग depends upon ability to deal with symptom and this has to be taught। कैसे किया जाता है ग्रेडेशन, कैसे किया जाता है इवैल्यूएशन, ये आपको सीखना पड़ेगा। ये आप किसी भी तरह से पैदा होके नहीं, इसीलिए ग्रेट होम्योपैथ्स के बच्चे भी यहाँ मिस कर जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको बैठ के ध्यान से सीखना होता है, ये आप हेरिडिटरी नहीं लेके आ सकते। ओके, सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर जुगल किशोर, दिस इज द इमेज ऑफ डॉक्टर जुगल किशोर। इन्होंने इवैल्यूएशन के लिए भी एक प्री रिक्विजिट दिया है, जैसे हैनीमैन ने क्वालिटीज दिया था, इन्होंने भी दिया कि जब भी इवैल्यूएशन करें तो एक मैच्योरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए, कौन सिम्टम को लेना है और कौन नहीं। एक बंगाली अगर रसगुल्ला खाना चाहे और एक मराठी अगर रसगुल्ला खाना चाहे तो दोनों के इवैल्यूएशन में बहुत फर्क हो। एक साउथ इंडियन अगर खट्टा खाना चाहे इमली का और एक नॉर्थ इंडियन अगर इमली का खट्टा खाना चाहे तो दोनों के इवैल्यूएशन में बहुत फर्क होता है। ये चीज को समझना है। एक 2 दोस्त गए खाने, एक ने बिना देखे ही नमक डाली, एक ने खाने के बाद नमक दी, दोनों के इवैल्यूएशन में बहुत फर्क होता है। तो इसके लिए मैच्योरिटी ऑफ माइंड बहुत जरूरी, कंप्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ मेडिसिन, फिजियोलॉजी, नॉर्मल साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है कि इनके कल्चर में क्या नॉर्मल है, इनके सिस्टम में क्या नॉर्मल है, ये चीज को समझना। नॉलेज ऑफ होम्योपैथिक फिलॉसफी और नॉलेज ऑफ होम्योपैथिक रेपर्टरीज, ये सारे हेल्प करते हैं आपको इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन जितनी अच्छी करेंगे उतनी स्किलफुल होम्योपैथ आप बने, उतने सक्सेसफुल होम्योपैथ आप बने। और कोई रीजन नहीं है। डिफरेंट ऑथर टू ऑथर में जो डिफरेंट प्रिस्क्राइबर में जो डिफरेंस आता है वो इस एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन की वजह से। ओके, एनालिसिस इवैल्यूएशन डिफरेंट ऑथर्स का डिफरेंट है। हैनीमैन ने किया है कैरेक्टरिस्टिक और जनरल और अनडिफाइंड सिम्टम, कभी डिटेल में इस पे डिस्कस करेंगे। बोनिवासन ने किया है लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कॉन्कोमिडेंट, या हम जिसको हेक्सामीटर बोलते हैं, स्क्विड उबी क्यूबस ऑक्सिलिस कर कुमोडो कुआंडो, ऐसा लिखा गया है लैटिन में ताकि याद रहे। ओके, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, वी कैन डिस्कस इसको भी बाद में। किड ने किया है अपने सिम्टोमेटोलॉजी को चैप्टर 32 और चैप्टर 33 में, फिलॉसफी में, किड्स लेक्चर्स ऑन होम्योपैथिक फिलॉसफी में जनरल सिम्टम्स, पर्टिकुलर सिम्टम एंड कॉमन सिम्टम्स पे। फिर जनरल को क्लासिफाई किया है मेंटल जनरल एंड फिजिकल जनरल में। मेंटल जनरल में अगेन टॉप मोस्ट रखा है विल, देन परवर्शन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड परवर्शन ऑफ मेमोरी। बस
बुकर ने सिनॉप्टिक की, बीबीसीआर में उन्होंने सेम रखा था, क्विस्क्विड उबी क्यूबस ऑक्सिलिस करकुमोडो क्वांडो। सिनॉप्टिक की में उन्होंने सबसे पहले इंपॉर्टेंट दिया है मोडालिटी को। मोडालिटी में भी सबसे इंपॉर्टेंट दिया है पॉजिटिव मोडालिटी एंड टाइम मोडालिटी। बुकर जब भी इवैल्यूएट करते थे तो पॉजिटिव मोडालिटी और टाइम मोडालिटी को बहुत प्रायोरिटी देते। देन उन्होंने मेंटल सिम्टम को रखा, आफ्टर दैट सेंसेशंस जो सब्जेक्टिव फीलिंग है पेशेंट की, इसके बाद ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स को रखा है, और लास्ट में पार्ट अफेक्टेड या लोकेशंस को रखा। एक केस समझना, फिलोसफिकल बैकग्राउंड, उसकी प्लान एंड कंस्ट्रक्शन, अडेप्टेबिलिटी एंड लिमिटेशन। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स और सजेस्ट किए हैं फॉर स्टूडेंट्स, आप इनको जरूर पढ़िएगा। डॉक्टर एसपी दे की एसेंशियल ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, डॉक्टर एमएल धावले की प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ होम्योपैथी, डॉक्टर जेएन कांजीलाल की राइटिंग ऑन होम्योपैथी, जुगल किशोर सर की एवोल्यूशन ऑन होम्योपैथिक रेपर्टरीज एंड रेपर्टराइजेशन, आरपी पटेल साहब की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक आर्ट ऑफ केस टेकिंग एंड प्रैक्टिकल रेपर्टराइजेशन, शंकरन सर की एलिमेंट ऑफ होम्योपैथी, एमएल टाइलर और जॉन वेयर की रेपर्टराइजिंग, जॉर्ज विथोल्कस की साइंस ऑफ होम्योपैथी, और एलिजाबेथ राइट हबर्ट की होम्योपैथी एज आर्ट इन साइंस। ठीक है, with this is my email id. If you want any information you can mail me. Okay, I would like to again thank Dr. Akhilesh Khan sir, my ex-principal, and he is always there to guide me. I am again thankful to principal of the Antarbharti Homoeopathic Medical College, Nagpur, for giving me opportunity to give my views on the case taking and repertory. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir. It was a very good session and a very beautiful session. Surely the knowledge and the learning by this session, or especially of art of case taking, observation skills, and the selection of rubrics, especially will help us in the repertorization. And this session will help us in our day-to-day practice and case taking also. I hope our listeners will go through the books introduced by you, sir, and it will be very helpful in our practice. Now, I would like to invite Dr. Pallavi ma'am to conduct the vote of thanks. Pallavi Patle. Pallavi Patle, are you here? Dr. Navin, okay, fine lecture. Thank you, sir. Okay, fine lecture. It is the fidelity. Thank you. Fidelity has accuracy. Three meaning hai. Whenever I teach, the one is the accuracy, exactitude. Exact. Other is the fidelity means faithfulness. Other is the fidelity means loyalty. So fidelity here, Hahnemann exactly translated by Dajan. That is the exactitude, exact translation. Exact translation. Faithfulness means patient of India has faith to his bodyguard, her bodyguard. The total universe is running on the basis of faithfulness. Understand? The family, husband has faithfulness to wife, wife has faithfulness to husband. So this is not applicable. Other is the loyalty. The Muslim has fidelity, Islam has fidelity to Quran. Hindu has fidelity to Hinduism. So that is not applicable. That is called the loyalty. Here is the fidelity exactitude. The fidelity word has three meanings, but Dajan has exactly translated that and what Hahnemann wanted to say in Germany. Understand? Therefore, the Dajan's translation is accepted. However, Dr. Navin is very close to us and very dynamic teacher. Once he was in my college, wherein I was in administration, now in the most oldest college in Asia, that is the Calcutta Homoeopathic Medical College. Good teacher. And already I have donated his book at library of the Antarbharti College. You please go through his book. That is very benefit for the students of BHMS who are aspirants having some aspiration to get MD. You please consult his book. I have donated. He donated me. I donated to principal for using for his students. Now, what is the name of your book? I forget any. Success is a very good. Success is a very good book.
for the students who want to take in MD admission. And also he has translated or made it very lucid. That is a Peer-Smooth probably case taking Yes. by Yes, joint yes. Art of publication. interrogation. So you please think about another day. I will talk with the principal Okay. for another day. And our tomorrow's speaker is Professor Jahara Madam, Jahara Haq of Antarbharti Homoeopathic Medical College, HOD of Pathology. And other speakers in the time to time will declare. And Saptorshi Banerjee has given his consent, he will coming. And Parthore from DKMM probably, Bhagwandas College, he is coming on 30th. And another so many speakers, I think we are inviting them one by one, they will join in our webinar, national webinar. Okay, and Asutosh Tripathi from the AHMC, All India Yes, Institute of Medical Science, you know that. Probably he is now posted as Jharkhand or Raipur. Chhattisgarh, and he is coming with some subjects. Another teacher, obviously from the different college, different part of the country will come. So Pallavi, please go through the valedictory session. Okay. Okay. Good afternoon, sir, and good Okay. afternoon, everyone. Myself, Dr. Pallavi Patel, Assistant Professor from Department of Homeopathic Pharmacy, and I will conduct the vote of thanks. First, I would like to thank God for everything and for being the part of this beautiful world. Now, I would like to thank Dr. Navin Singh, sir, who had beautifully explained about case taking and repertory. Then he has also given knowledge about various books, and thank you so much, sir, for the donation of your book in our college. We will definitely, surely go through all these books, and I also request students, all of the students, to go his book, that is the Success. Now, I would also like to thank our director, that is Dr. Bhausab Zitte, sir, for everything. He is the true guiding light for all of us. Now, I would like to thank Dr. Akhilesh Kha, sir, for taking all these efforts and sharing knowledge all the time for us. Then I would also like to thank our principal, Dr. Prashant Barbhat, sir, who guides us for all these and manage all these things beautifully and handles all these things wonderfully. Then I would also like to thank our teachers, faculty members, and students for careful and peacefully listening of the webinar. Then I would also like to thank Ruchi for this beautiful anchoring. And lastly, I will thank our technical team, especially Naman Phule, for all the supports. Thank you. Thank you so much. And I will hand over the mic to the Ruchi. Thank you so much, sir. Okay. Thank you so much, Dr. Pallavi ma'am, for giving the vote of thanks. In our national webinar series conducted by Dabha Homoeopathic Medical, Antarbharti Homoeopathic Medical College, with guidance of respected Dr. Bhausab Jite and Dr. Prashant Barbhat, sir, we are able to conduct this program. The upcoming sessions will be conducted by the following doctors. On 29th of November, Dr. Zahra Haq ma'am will be conducting the session on dealing hypothyroidism efficaciously with the help of homeopathic management. The timing will be from 10:30 to 12:30. On 30th of November, we'll have the great speaker, Dr. Parth Roy. The timing will be from 3 p.m. to 4 p.m. And on 1st of December, we'll have the faculty member from our own college, Dr. Pankaj Nimje, sir, one of the very great teacher and a physician. Thank you so much for patience listening and for joining the webinar.